Namaskar. Welcome to Vision of Asia, where the community on ITV Gold. In this week's special Vision of Asia, we will begin with this week with Padma Shri Dr. Sudhir Parekh, a report on launch or inauguration of Statue of Equality. There will be a tribute to Bharat Ratna Lataji as a part of this Vision of Asia, and also special Shraddhanjali to Kokila Kanti Bharat Ratna Lataji. Chairman of Patanjali Ayurveda, Acharya Balkishanji talks to us. Listen to part of my conversation with him and a report on Vasant Panchami celebration from Gayatri Chetana Center and also Saraswati Puja from Sai Datta Peetham. All this coming up right after these short messages. Stay with us. Welcome back. You're watching Vision of Asia as a community, and we begin with the special conversation with Padma Shri Dr. Sudhir Parekh covering important events that caught our attention last week. Namaskar. Welcome to this special edition of This Week with Padma Shri Dr. Sudhir Parekh. Doctor, welcome. Namaste. Namaskar. Namaskar. So last week was very, very important in terms of lot of developments. One sad demise of Bharat Ratna Lata Mangeshkarji. Then there are other important developments which we will talk about, including address of Prime Minister Narendra Modi in the Parliament, and also his presence at the inauguration of Sri Ramanuj Statue of Equality. Let us begin with the equality side. How significant do you think is the presence of this 216 feet tall statue of Sri Ramanuj? It's very significant. Actually, I'm personally I have connection with that temple, the one which just now inaugurated. Because about 6 years ago, that Sant, the chief of that project temple, his name is, I think, Jiriya Swami. Jiriya Swami, yeah. So he came. Chinna also. Chinna Jiriya Swami. Yeah. And he's a young guy. I mean, he must be that time 50s. And he called me because somebody suggested that you should talk to Dr. Parekh, who can publicize you, you can promote you, you can even help you to getting fund. And that time he showed me the blueprint. That time it wasn't started making that temple, you know. Mm-hmm. And when I saw the blueprint, it was very impressive. And I mean, I thought, I hope this thing can happen, because, you know, there is a statue of this Ramanujacharya, a huge statue, and there are 108 temples around it. Yes. Of Shiva, Amba Mata, this, that, you know. So, I mean, it was mind-boggling thing, you know. And I think, but when I saw this thing, but then I helped him whatever I can, and then after a couple of years after that meeting, I mean, it we lost contact. So when I saw this thing, I said, wow. Yeah. So let me fill in that they raised over 1,000 crore rupees for this project. Yes. And the statue itself is said to be to the tune of 105 crore rupees. Yes, yes. So, I mean, that shows that how our people are so religious, and they are ready to pour any amount of money for good cause.
Absolutely. And now let us look at the presence of Prime Minister Narendra Modi. And many people are not aware that this project was a result of the contribution of many people. They just see the presence of Prime Minister Modi and they feel that government has something to do with it. But his presence made it special and gave it certain more height, I think. Of course, because see, it was done by the people of the Hyderabad, Andhra Pradesh and Telangana, and by having, and Ramanujacharya, it's like another Ambedkar, or even more than Ambedkar, because Much he more than believed, that, much yeah, more than much that, more yeah. than, because he believed in equality. He believed in that all the religions are same, is equal. So because when during his time, it was 1,000 years ago, we are talking about 1,000 years ago, people believe that Shiva is superior than this, and Vishnu is superior than that, and the people who believes in Shiva Bhakti, they don't get along with the people who believe in Vishnu Bhakti and all those things. So he brought all the different gods and goddesses together, or their devotee together. Right, right. And kind of made it Sanatan Dharma from Hindu Dharma, whatever you call it, So, that is the way. Actually, Hindu word came quite late. There Yeah. is no reference of Hindu word Right, in right. any So, scriptures. it is kind of, and can you imagine that 1,000 years ago, person has this kind of vision to make it everybody equal, all religion equal, and I think it's unbelievable. It's And it is very aptly titled Statue of Equality. And if you see the statue and its lighting, have you seen that? Yes. Very impressive. Very, very impressive. Very impressive. And that shows that India came a long way to do this thing. And this is long-lasting thing. Even second generation, third generation, even though they are not very religious-minded kids, but they will go and see this kind of lighting and these statues, and Absolutely. And look at this already, the impact of the presence of the statues that we sitting in New York are talking about it. And many people are starting to learn who was he, why this statue. People forgot about it. Yeah. We knew when we were in the school about Ramanujacharya, but then as we grew up, we forgot about it because nobody kept reminding us. Correct. That's the whole thing. Absolutely, absolutely. And now moving towards the significant development of 6th February, Bharat Ratna and sister of Prime Minister Narendra Modi, as well as someone who enriched all of us over many generations. She was 92. And she also had COVID. Everybody has expressed her views on the way they found themselves related to Lataji. In your case, what is it like to be in the world where she was around and now she's not around in physical form? Well, I think it's very important because if you look at her journey, she was uneducated. She was very only secondary school, and after that, I think she quit the school, and then so she didn't know even anything other than Marathi, and the way she ruled or controlled or become queen of Urdu music or Urdu language, it's something different. Absolutely. Right? And also, look at her accomplishment. If you look at her singing in the Mahal, which is Raj Kapoor's movie, and all the way to her singing for Aishwarya Rai or for Kajol, so it's a long, about 60-70 years of history here. And it shows that whether she sang for young lady, or she sang for middle-aged lady, or she sang for old lady, she sang exactly the way the character is. Absolutely. Her character was. And that shows that it's a God gift. You cannot have, being a human being, you cannot have this kind of gift. And
And she was, she worked against everything because, in the beginning when they told her, even this S.D. Burman told her that you have too soft voice, you will not work. And she proved him wrong. Absolutely, absolutely. She was blessed by her father who taught her at the early age also, but she lost him while she was only 13, and then Right. she took on the responsibility of the whole family. So there's No, a I think life she was a struggle. legend. She was real, in real sense, she was legend. Even though when we were young, we used to hear the rumors about her dominance and her kind of cunningness to control the film industry. But Right, I don't think that was correct rumor. That was wrong rumors, because this kind of personality cannot be controlling to anybody, because she didn't have much competition that time anyway. And the competition, she's so versatile that there is no competition. So there is so much to talk about Lataji, but let me bring in her relationship with Prime Minister Narendra Modi, who also declared 2 days mourning in the nation because of her passing away. How do you feel about some of the conversations that you probably must have heard between Prime Minister Modi and Lataji on phone while coming to America? He called her, and so I think that shows that they are very close, in a sense, being as a brother and sister, or and they are really care for the nation, and both are nationalist personality, and that's why they get along good. They click good. And I think Prime Minister has always appreciated any good talent in India, right? absolutely. So I think I'm very happy to see that Prime Minister has done such a great appreciation of Lata Mangeshkar. And she also composed on her own the poetry which was recited by Prime Minister Modi. Sogand mujhe is mitti ki main desh nahi jhukne dunga. Probably that was the last of the series of her offerings. And let me quickly seek your impressions about Prime Minister Narendra Modi's very powerful rebuttal to opposition parliamentarians in response to the address by President. Yes, I think it was very good, very effective, very aggressive, and he tried to enumerate all his accomplishment in the last 7 years. So I think it was well received by the people. I mean, some people may say that it is more political than real, because somebody commented that he accomplished. I mean, he ran through all his accomplishment, but he did not mention about farmers' law. So I mean, so and there's another thing which very quickly, if you touch on the charge brought by Rahul Gandhi against the Modi government of bringing China and Pakistan Together, closer. yeah. What do you think about that? No, I think that's again is a political rhetoric. I mean, by Rahul Gandhi. That's not true. I mean, because even Pakistan was close to China even 40, 50 years ago. Nehruji's time also. Yeah. Nehruji time too. So I think that's all rhetoric and rhetoric kind of. And I think has no meaning to it. It's a political thing. And right now elections are going on. So in the heat of the election, everything is political. So on that note, your concluding remarks for our viewers from today. Well, dear friends, this week we lost our beloved, very popular, very. We all feel like that she's one of our family member, and great singer, Bharat Ratna Lata Mangeshkar, and she has, she was in Guinness record. Sang maximum number of songs by her in the world, in any movie world, whether it's Hollywood or Bollywood. And so we pray God to bless her
And I think because she was very pure subject or pure person, and that's why even God decided to take her in the upstairs and on Vasanta Panchami, which is a birthday of the Saraswati, and she was in a sense Saraswati in music, and I think really it's a great feeling. And again, elections are coming in India. I'm sure it should help the party, whichever you like, and campaign for them by sitting here too and talk to your friends and family to to write candidates. And so I would like to say God bless America, God bless India, and God bless Indian American. Thank you. See you next week. On 6th February, when the world was also observing Vasanta Panchami, the day dedicated to worship Ma Saraswati, Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji left us. Her absence in physical form will be missed, but the rich legacy of melodious songs and her patriotic feelings will continue to inspire us. Here is Shraddhanjali to Lata Mangeshkar ji. It is just apt that the Prime Minister pays last respect to his sister. पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना पीर टाले न टल रही होगी, यूं तबीयत मचल रही होगी, तुम चिता देख कर न घबराना, आत्मा घर बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी नम आंखों से अपनी दीदी को नमन करते हुए भरे मन से, अश्रु से भरी आंखें आप देख सकते हैं। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या साश्रू नयनातून आपण सगळेच जण व्यक्त करतोय, तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं. आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर आघात गाजवणाऱ्या गारुड गाजवणाऱ्या त्या लता दीदींना आपण आज अखेरचा निरोप देतोय. आज देखिए हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत दुखद दिवस है कि आज भारत रत्न स्वर कोकिला हमारे देश की नहीं विश्व की शान और संगीत की पहचान मेरी मातृतुल्य और माता सरस्वती के स्वरूप वाली लता मंगेशकर दीदी आज हमारे बीच नहीं रही। इससे बड़ा दुखद समाचार और क्या हो सकता है। स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, मेरा वास्तव में रोम रोम दुखी हो रहा है। मैंने उनसे मिलकर उनका दर्शन भी किया था और उनका आशीर्वाद भी पाया था, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। इतनी महान शख्सियत, इतनी विनम्रता की प्रतिमूर्ति, इतनी ऊंचाइयों पर शिखर पर पहुंचकर भी वो हमेशा जमीन से जुड़ी रहीं और संगीत की साधना अध्यात्म से जुड़कर करती रहीं। उनका पूरा परिवार ही संगीत के प्रति समर्पित है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि इस रूप में भी देना चाहती हूँ कि मैं जब उनसे मिली थी आज से लगभग 44 वर्ष पूर्व, मेरे पति वीरेन जी जो अब इस दुनिया में नहीं है वो भी मेरे साथ थे और हम लोग गए थे मुंबई, वहां मेरा कार्यक्रम था और उसमें आयोजकों ने मुझे बताया कि लता जी भी सुनने आने वाली हैं। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि लता मंगेशकर जी जैसी बड़ी महान शख्सियत मुझे सुनने आने वाली है। मैं तो
स्वरों के सागर में एक बूंद के समान भी नहीं हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन वहाँ पर और बहुत सी फ़िल्मी हस्तियाँ थीं, लेकिन लता जी नहीं आई थीं। कार्यक्रम के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि उन्हीं दिनों कुछ 2-4 दिन पहले ही मुकेश जी की मृत्यु हो गई थी। जब वो लता जी और मुकेश जी दोनों विदेश से काम देकर भारत लौट रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी डेड बॉडी को लाया गया था, जो हमारे महान गायक मुकेश जी थे। तो लता जी उनको अपने भाई के समान स्नेह करती थीं। तो वो कहने लगीं, उन्होंने आयोजकों को फ़ोन किया और ये कहा कि मेरी जो आगरा से शशि तिवारी आई हैं, उनसे मेरी बात कराइए। तो कितनी बड़ी बात थी कि वो मुझे फ़ोन पर बुला रही थीं। तो मैंने फ़ोन लिया, उनको प्रणाम किया। तो कहने लगी कि बेटा आप मुझे क्षमा करना, मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाई। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आपकी कोई व्यस्तता रही होगी इसलिए आप नहीं आ पाई, तो क्षमा की कोई बात नहीं, आप मेरी माता के समान हैं, आप ऐसा मत करिए। बोले कि नहीं मैं ज़रूर आती, लेकिन मुकेश भाई की मृत्यु के कारण मैं इतनी शोक में हो गई कि मैंने ये मन में ठान लिया, अहद कर लिया कि मैं अभी 13 दिन तक ना कोई गीत गाऊँगी, ना किसी कार्यक्रम में जाऊँगी। तो अभी उनको 13 दिन पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं नहीं आ पाई, लेकिन आप एक काम करें, आप मेरे घर आ जाइए। तो वो अच्छा। हमारे तो एकदम सुन के एकदम पंख लग गए जैसे हमारे मन को। मेरे पति भी बड़े खुश हुए, बोले चलो लता दीदी का दर्शन करेंगे, क्योंकि उसके पहले हमने कभी उन्हें देखा नहीं था। तो पेडर रोड पे मुंबई में प्रभु कुंज उनकी बिल्डिंग का नाम है, तो वहाँ पर उन्होंने हमें बुलाया। वो आयोजक जो थे उन्होंने हमें हमारे लिए प्रबंध कर दिया, कार में वहाँ तक पहुँच दिया। जब हम वहाँ गए तो लगा कि जैसे किसी मंदिर में आ गए, क्योंकि गणपति के दिन थे। बहुत विशालकाय गणपति उन्होंने अपने कमरे में स्थापित किए हुए थे पूजा के लिए। और जब हम पहुँचे तो हमारे लिए तो वो माँ सरस्वती का भी मंदिर था, गणपति भी हमें दर्शन दे रहे थे। तो पहले हमने भगवान गणपति को नमन किया, उसके बाद साष्टांग प्रणाम, हम वास्तव में साष्टांग प्रणाम, मैं और मेरे पति वीरेन जी, हम दोनों लेट गए उनके चरणों में। और उन्होंने बड़े प्यार से हमें ऐसे उठाया कि वो स्पर्श मुझे आज तक भूला नहीं है, मेरे अभी भी रोमांच हो रहा है। ईश्वरीय वरदान थी लता जी, परमात्मा का अवतरण थी लता जी। सरस्वती का मुझे लगता है रूप ही एक बहुत बड़े तपस्वियों ने तपस्या करके देवलोक में हलचल मचाई होगी कि नहीं, पृथ्वी खंड पर एक खंड है जिसका नाम है भारत, वहां भेजी जाएंगी लता मंगेशकर। और आज वो चली गई हैं, आज उनकी विदाई हो गई है। मां सरस्वती, कल उनका पूजन था, आज उनकी विदाई हुई है। मैं ऐसे पुण्य दिन को, परम दिन को नमन करता हूं और पूरे देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सदगति के लिए प्रार्थना करें और हम सब उनसे सीख लें, उनके व्यक्तित्व से सीख लें। और उनका जो गाना है वो एनलाइटनमेंट, वो ज्योतिर्मय करने वाला है। युगों युगों तक जब तक मानव जाति रहेगी तब तक लता जी का अस्तित्व रहेगा। हरिओम। जो खुद ही संगीत हो, उनके बारे में कौन क्या कुछ भी कह सकता है। जो हुआ वो तो किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता। जीवन का ये रूप लेना अमोघ है। जिस भूमि में सुर की साम्राज्ञी का जन्म हुआ, उस भारत भूमि की शान का क्या बखान करें। हम सब एक एक भारतीय गर्वित है, फॉर्चुनेट है कि हम सब का जन्म भारत देश में हुआ। मेरा ये अति सौभाग्य है कि लता जी और मेरे गुरुजी एवरी नाउ एंड देन एक दूसरे को फ़ोन के माध्यम से संपर्क में रहते हैं एक दूसरे के साथ, और मैं चुपचाप बैठ के विटनेस करती रहती ये सब अनमोल घड़ियों की। दोनों जैसे बच्चों की तरह शिशु सुलभ बातें करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। और during those conversations, many times I got a chance to pay my respects to her directly during the end of the conversation. मुझे उनको प्रणाम कहने का मौका मिला। मैं इसके लिए मेरे गुरुजी की बहुत 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 आभारी हूँ।
तो ये लता जी का हम्म, एक एक गाना संगीत शास्त्र के एक एक पहलू का टेक्स्ट बुक है। हिंदी फिल्म म्यूजिक को उन्होंने ऐसे समृद्ध किया कि उस स्पेस में रहना, उस स्पेस में आना और उसको समझना, उसको पेश करना, वो सिर्फ एक और लता जी के लिए ही पॉसिबल है और किसी की बस की बात नहीं है। वर्तमान के सारे संगीतकारों के लिए म्यूजिक के हर एक सेगमेंट्स पे काम करने की जो लोग काम करते हैं उनके लिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए उनके गानों पे शोध करते जाना है, उनके गानों से सीखते जाएं और ये विरासत को संभालते जाएं। मेरा इतना ही कहना है। इतनी बड़ी शख्स के लिए मैं और क्या कहूँ। We also had two important visitors in our studio sharing their memories and paying their tributes to Lata ji. Raj Grover ji has been an active part of film industry as producer. He worked closely with Sunil Dutt and several film stars. He joined Shiraz ji to ITV studio, and here is a part of that conversation. आपने लता जी के नाम के साथ शिराज शरीफ का नाम लिया, मेरा नाम लिया। मैं एक नाम और लेना चाहूँगा अपने एक दोस्त का, जिनके साथ मेरा काफ़ी लंबा संपर्क रहा, गुलजार जी, जिन्होंने ये पंक्तियाँ गीत लिखा है। और हमने बहुत शुरू में जब मैं बम्बई आया था, मैं मोहन स्टूडियो बम्बई में था, जहाँ पे कृष्ण चोपड़ा एक फिल्म डायरेक्टर थे, बलराज साहनी की कंपनी थी। मैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर था उनकी कंपनी में, और गुलजार साथ में ही हमारे ऑफिस था, बिमल रॉय साहब का, गुलजार उनके असिस्टेंट थे। तो हमारा उठना बैठना, खाना पीना, दोपहर का लंच वंच इकट्ठे रहता था। तो मुझे जाहिर है, आई फील वेरी प्राउड जब ये गाना बजता है। अरे वाह। और ये पहचान है, तो मुझे गुलजार बहुत याद आता है। और मैं जब भी बम्बई जाता हूँ तो मैं गुलजार से ज़रूर मिलता हूँ, और ना मिलूँ तो फिर ऐसा लगता है कि आप बंदा आगरा गया और ताजमहल नहीं देखा। अरे, तो मैं गुलजार से ज़रूर मिल के आता हूँ। तो जब लता दीदी के बारे में आप सोचते हैं तो कैसी यादें? लता जी हमेशा बच्चों की तरह बातें करती थी। बच्चों के साथ उनको बहुत प्यार था। वो घर में सबसे बड़ी थी, और जितने भी उनकी छोटी बहनें थीं, आशा भोसले हो या मीना हो या जो भी भाई उनका हृदय, सबको अपने बच्चा समझती थी। और फिल्म लाइन में जितने जिनसे इनका संपर्क रहा लता जी का, सबके बच्चों से बहुत प्यार रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार इनको जो रहा वो नरगिस जी के बेटे से रहा, संजू से। संजू को वो बिल्कुल, जिसमें उतना अपनापन, वो इतना मैं देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब जैसे न्यूज़ आई लता जी के बारे में, तो मुझे सबसे पहले बच्चा जो याद आया वो संजू याद आया। शिराज जी, आप इसे एक पर्सनल लॉस मानते हैं? जी, सभी मानते हैं। और मैं शुरू करना चाहूँगा मजरू सुल्तानपुरी कहे हुए एक शेर से कि रोक सकता है हमें जिंदा ने भला क्या मजरूह, रोक सकता है हमें जिंदा ने भला क्या मजरूह, हम तो आवाज़ हैं दीवार से छन जाते हैं। अरे वाह। ये आवाज़ ऐसी है जो तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हम क्या तारीफ़ करें। और वो ज़माना भी अलग था, टीम वर्क था, लिखे अच्छे जाते थे गाने, शायर अच्छे थे, कवि अच्छे थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स लाजवाब थे। हर एक की इंडिविजुअल एक पहचान थी कि ये अगर गाना है तो ये नौशाद साहब का क्लासिकल बेस है, ये रोशन साहब का है आउटस्टैंडिंग, रोशन साहब बहुत आउटस्टैंडिंग।
और सलील चौधरी जिनको ओशन ऑफ म्यूज़िक मानती थी, खुद लता जी भी, जयदेव जी आए, जब काफ़ी देर से आए मगर बहुत अच्छा उन्होंने, जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे बहुत अच्छे थे, मेहनत से काम होता था। और ये सिर्फ मेरा ही कहा हुआ नहीं है, बल्कि लता जी खुद भी मानती थी कि जब तक गाना अच्छा लिखा ना जाए, वो कोई भी गा ले या कोई भी म्यूज़िक दे ले, वो गाने में वो बात पैदा नहीं कर सकते हम जो आउटस्टैंडिंग हो या हमेशा चले। आज भी याद इसलिए रहते हैं गाने कि उस ज़माने के शायर ऐसे थे, गाने लिखे जाते थे ऐसे। साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी देखें, मजरू सुल्तानपुरी जो 1940s में लिखा है उन्होंने, जब दिल ही टूट गया हम जी की क्या करेंगे। और फिर वो लिखते हैं 80s में, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बड़ा नाम करेगा हमारा बेटा। ये जो है इनिंग्स है मजरू साहब की, तो 60 इयर्स की बहुत बड़ी बात है। तो शायर भी ऐसे थे, लिखे अच्छे जाते थे गाने, धुनें भी अच्छी बनती थी। और फिर सोने पे सुहागा, दो आवाज़ें, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, ये दो आवाज़ें ऐसी हैं जो हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो खैर बहुत तो तिफल मख्तब है उनके सामने कि हम तो कुछ क्या जानते हैं। मगर जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया है मैंने, मन्ना दा के, कि भाई हम भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, किशोर मुकेश भी गाता है, किशोर भी गाता है, पर रफ़ी साहब जैसा हम नहीं गा सकते। और तो ये दो आवाज़ें ऐसी है जो बरसों बीत जाएंगे मगर वो रिपीट नहीं हो सकती, फिर दोबारा नहीं आ सकती, लता जी और मोहम्मद रफ़ी। तो इनका कॉम्बिनेशन का कोई आपका पसंदीदा गाना? हाँ, बहुत सारे गाने हैं, बहुत अच्छे, पहले के भी हैं। और नौशाद साहब के देख लिया मैंने, किस्मत का तमाशा देख लिया, एक आग लगी एक आग बुझी, आंखों ने मेरी क्या देख लिया, अच्छा है वो भी, निम्मी जी और दिलीप साहब पर फिल्माया गाना, वेरी गुड। Chairman of Patanjali Ayurveda, Acharya Balkishan ji, is also working with founder of Hindu University in Florida, Brahmaratan Agarwal ji, to launch a wellness center in this part of the world. He and Brahma ji as well as Pramod Bhagat joined me for a conversation. Here are some excerpts from that discussion. तो अब बताइए, सफलता जीवन में आप किसे मानते हैं? सफलता हम कार्यों को नहीं, हम लोगों की स्वीकार्यता को मानते हैं। प्रारंभ में श्रद्धेय स्वामी जी और हमने, हमारे कुछ मित्रों ने मिलकर के, कभी हमने यह चाहत नहीं करी कि हमें सफल होना है या हमको बड़ा होना है। हम लोगों ने यही प्रयास किया कि भगवान ने जो शक्ति और सामर्थ्य दिया है उसके माध्यम से हमको बड़ा कार्य करना है। तो बड़ा कार्य करने के लिए हम प्रवृत्त हुए, तो लोगों ने हमको बड़ा बनाया। बड़ा कार्यों के बेनिफिट, लाभ अनेकांश लोगों को मिलने लगा, तो उससे लोगों ने कहा कि हम सफल हो गए। तो सफलता लक्ष्य नहीं, परिणाम है। बड़ा होना लक्ष्य नहीं, लोगों की स्वीकार्यता है। तो अशोक भाई, हम ऐसा मानते हैं और इसी मान्यता के अनुसार हम लोग पूरी तरह से उसके लिए हम क्रियाशील हैं और उसके लिए हम लगे हुए हैं। तो आप जो लगे हुए हैं उसका और थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों तक जब पहुंचेगा तो वो चमत्कृत हो जाएंगे ये जानकर कि इतने सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी आचार्य बालकिशन जी के बारे में फोर्ब्स जो पत्रिका है वो ये मई के अंक में लिखती है 2021 में कि आप $2.3 बिलियन तक अपनी पातंजलि आयुर्वेदा को लेकर पहुंचे हैं। पर एक सीमा के बाद में संख्या महत्व नहीं रखती है, समर्पण और जो प्रवाह है उसके बारे में थोड़ा और हम जानेंगे कि आप फ्लोरिडा में क्या करने वाले हैं। पर प्रमोद जी, आप बताएं, टोटल हेल्थ विद आयुर्वेदा के संदर्भ को लेते हुए जब आप पातंजलि आयुर्वेदा के योगदान की तरफ देखते हैं और विशेषकर आचार्य बालकिशन जी की उपस्थिति में, तो क्या आपके मन में आता है? धन्यवाद अशोक जी। इसमें कोई दो राय
नहीं है। आयुर्वेदा जो है पूरे मेडिकल साइंस की का जनक पिता है और वहीं से एलोपैथी ही आया है। और जो पतंजलि का जो पूरी दुनिया में जो देन है वो अद्भुत है। और आपको पता है कि मेरी जान भी जो अगर बची 2020 में मार्च में जब फर्स्ट टाइम जब मुझे कोविड से आपने तो मेरी पहली स्टोरी चलाई थी, तो पतंजलि का गिलोय, तुलसी, नीम, उसी से मैं ठीक हुआ हूं। और साथ में योगा भी मैंने किया था। और आपको पता है उसके बाद हमारे कई टीवी चैनल्स में न्यूज में आए थे कि एनआरआई ने अपने आप को इस तरह से। तो आज भी वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन पतंजलि की ये सारे प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे अमेरिका में जहां भी जरूरत होती है लोग मांगते हैं, अब उनको भिजवा देते हैं। बहुत ही सुंदर। और हजारों कॉपी बढ़ चुकी है। और हम तो बाबा रामदेव जी और बाल किशन जी की जो ये बिलियनियर की बात कर रहे थे, ये तो बिलियंस और बिलियन लोगों के जान बचाने में इनका हाथ रहा है। इनको सत सत नमन है। परमात्मा इनको हमारी उम्र भी लग जाए, जितना अच्छा ये काम कर रहे हैं दुनिया के लिए। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है। ऐसे भाव जगाने वाले आचार्य बालकिशन जी के बारे में उनके समीप फ्लोरिडा में बैठे हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले हमारे ब्रह्म रतन अग्रवाल जी जब आयुर्वेदा के संदर्भ को लेते हुए जो वेलनेस सेंटर की स्थापना करने के उद्देश्य से आचार्य जी पधारे हैं फ्लोरिडा में, उसके बारे में आने वाले समय में उसकी क्या भूमिका आप देखते हैं ब्रह्म रतन जी? मतलब यही था कि हमने ये जो कैंप साइट रिट्रीट सेंटर लिया है, 1 साल हो गया अभी। तो बालकृष्ण जी से निरंतर चर्चा चल रही थी कि आप कब आके इसको मार्गदर्शन देंगे कि क्या कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो ये 160 एकर्स थे जो हमने बाई किए फर्स्ट टाइम, और इसमें 200-250 लोग एज इट इज रह सकते हैं अगर योगा का कोई कैंप होता है। उसके साथ 3 कॉन्फ्रेंस सेंटर्स हैं, स्विमिंग पूल है और शैलेज हैं, हाउसेस हैं। तो इस तरह से है। और 140 एकड़ नेक्स्ट डोर एक पीस था, वो भी हमने लिया। तो टोटल 300 एकर्स है। और मुझे बहुत आनंद, बहुत खुशी होती है कि बालकृष्ण जी इतना विशाल दृष्टिकोण है इनका कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। इतनी तड़प है उनके मन में कि हम जल्दी से जल्दी कुछ करें। और ऐसा लगता है कि भी अभी ये थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। और हमारा सारा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। दे ऑल वांट दिस टू हैपन। बहुत सुंदर। वैसे तो एक किल विद्यालय है या विद्या भारती है, HAF है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, सबसे हमारा इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत ही सुंदर परिकल्पना। और आचार्य जी फिर से हम एक ऐसी बात की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसका संबंध सबसे होता है। हम सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं और हम अपनी क्षमता को कितना आंकते हैं उसके अनुसार हमारी परफॉर्मेंस होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने उस तरह के जो पैमाने सामान्य लोगों के मन में होते हैं उनको तोड़ दिया है। और बल्कि ऐसा लगता है कि आप कोई सीमा को मान नहीं रहे हैं जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। तो आप बताएं इसका सीक्रेट क्या है कि इस तरह का जो मनोभाव होना, इस तरह का एक आंतरिक जिसे हम दृढ़ इच्छा शक्ति कहें या आत्मविश्वास होना, उसका श्रेय आप किसे देते हैं? योग को देते हैं, प्रारब्ध को देते हैं, बाबा रामदेव जी की भगवान श्री कृष्ण ने भाई अशोक जी एक तो भाई प्रमोद जी ने बहुत अति स्तुत्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। हम इतने वंदनीय और स्तुत्य नहीं है, प्रयास है, साधारण मनुष्य है। प्रमोद भाई की अतिरेक भावनाएं और संवेदनाएं वो अपने व्यक्त कर रहे थे। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसको हम शुक्ल यजुर्वेदीय जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है वहां पर वेद भगवान स्वयं कहते हैं कुर्वण्येवेह कर्माणि जिजीविषिच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेदो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये मानव का ये
स्वभाव होना चाहिए कि हम कि कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म करने में, पुरुषार्थ करने में कभी हम कोताही ना बरतें। हम जो है उसके लिए पूरी ताकत और ऊर्जा लगा करके हम कर्मों का संपादन करें। परंतु होता क्या है कि हम लोग फल की चाहना में पहले से ही विचारमग्न रहने रह जाते हैं। फल की आशा में नानाविध तरह के हर्ष और अतिरेक कल्पनाओं में हम जीना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु कालांतर में फिर क्या हो जाता है कि जब वह परिणाम नहीं आता है तो हम दुखी होते हैं। तो हम कर्म योग की साधना करते हुए जब हमने आध्यात्म मार्ग का आलम्बन लिया तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि कर्म योग को करते हुए हमारे ऋषि महर्षियों की जो मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, जिसे हमें जो हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है उनको आगे बढ़ाते हुए योग आयुर्वेद को निमित्त बना करके हम पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ में आगे बढ़ेंगे और उसके माध्यम से जनसेवा करेंगे। इस संकल्प से हम आगे बढ़े थे। हालांकि हम ये नहीं कह सकते, मैं ये कह दूं कि कतई भी कर्म की अभिलाषा रहित होकर के हम कर्म करते हैं, यह तो थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगी। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कर्म की लालच, जो फल की लालसा जो है, कर्म करते हुए न बने या नगण्य रहे या न्यूनतम रहे, ये प्रयास सततः बना रहता है। वो हमारी साधना का एक पार्ट है, साधना का वह एक प्रकार है। तो हम इसके माध्यम से अपने आध्यात्म योग के साथ में, कर्म योग की पूरी शक्ति के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़े होते हैं। इसलिए हमको भय या डर नहीं लगता है। इसकी वजह से कहीं हमें असफलता की चिंता नहीं सताती है। इसकी वजह से प्राप्ति होने पर भी आप ही गिनाते हो कि हम मिलियनियर हो गए, विलियनियर्स हो गए, हमको कोई, हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कारण क्या है कि हम उस कर्म से परे हैं। उस कर्म में अलिप्त होने का जो सततः प्रयास रहता है, उसका ही यह कारण है। क्योंकि संसार में भगवान ने कर्म करने के लिए हमको अपार सामर्थ्य दिया हुआ है। सामर्थ्य के साथ में परमात्मा स्वयं कहते हैं कि शतहस्त संकीरा सहस्रहस्त समाहर, यानी कि हम 100 हाथों से हम यदि पुरुषार्थ कर करके किसी चीज को अर्जित करते हैं तो फिर सहस्र हाथों से संकीरा, उसको फिर हम बिखरने वाले, फैलाने वाले, बांटने वाले भी बने। जब ये भावनाएं रहती हैं तो आदमी को अंतर में तोष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और मैं यही सबसे अपेक्षा भी करता हूँ कि हम सबको जीवन निर्वहन के साधन के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, अपितु पुरुषार्थ से अनेक लोगों के जीवन निर्वहन के साधन पैदा हो जाए, इसके लिए हमको सततः प्रयास आचार्य। Now a report from Gayatri Chetana Center on celebration of Vasant Panchami. I'm Jiken Patel and I am a volunteer at the Gayatri Chetana Center, New Jersey. And today we had the celebration of the auspicious occasion of Vasant Panchami, and the volunteers and people showed up in a great amount, and it was a very vibrant celebration. And Vasant Parva is basically the Adhyatmic, the spiritual birthday of Param Puja Gurudev, and today was the day when his Guruji enlightened him in the form of a diya, and since then he has enlightened the Akhand Deepak, which is still burning today. And the Gayatri Parivar that started from a few hundred people is now crores and crores of people across the world. Today's wonderful event was conducted directly live from Santi Kunj Haridwar. It was a wonderful event. We had lighted up over 3,000 diyas, and all the Parijans throughout UK, US and India celebrated this event with us.
We thank so much for today's technology, and we enjoyed a lot with this Vasant Panchami Parva. We are very inspired to move forward and come out of this darkness of COVID and walking towards the light. Thank you. Jai Gurudev. આજના વસંત પર્વના શુભ અવસરમાં શાંતિકુંજ હરિદ્વારથી ડૉક્ટર ચિન્મયના આશીર્વાદ સાથે ત્યાંની ટીમે આજની નવી ટેકનોલોજીમાં હજારો માઇલ દૂર પણ અહીંયા પ્રત્યક્ષ રીતે સતત 2 કલાક સુધી મહાદીપ યજ્ઞનું આયોજન થયું. અસંખ્ય પરિજનોએ તેમાં લાભ લીધો અને સાથે સાથે શાંતિકુંજથી અહીંયા પરદેશની અંદર પણ દરેકને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા. આપણું જીવન વસંતમય જેવું બને. સાથે સાથે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરમાં નવરાત્રિની અંદર ઉપવનમાં આ જ રીતે એની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવશે. પરિજનોને આજના દિવસના ગાयत्री चेतना सेंटर थी आशीर्वाद. जय गुरुदेव. नमस्कार, सभी को प्रणाम. जो जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी को गायत्री चेतना सेंटर से मैं विनोद बोल रहा हूँ और मेरे साथ शंभू भाई है. वो यहाँ गायत्री चेतना सेंटर में सेवा कर रहे हैं और हमारे वरिष्ठ परिजन भाई श्री भाईलाल भाई मेरे साथ में खड़े हैं. हम सभी गायत्री परिवार के परिजनों ने मिल कर के आज बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही भाव से, बहुत ही श्रद्धा से आज हमारे जो आराध्य देव है, हमारे जो गुरुदेव है, सदगुरु है, उन सदगुरु का आध्यात्मिक जन्म दिवस बड़े ही श्रद्धा से हमने मनाया. हमारे जो मेन चेतना केंद्र है, हमारे जो युग तीर्थ है शांति कुंज, हमारे जो दिव्य धाम है, जो जहाँ से गायत्री चेतना केंद्र वहीं से मतलब जहाँ से गायत्री तीर्थ की शुरुआत हुई, गायत्री परिवार की शुरुआत हुई, वैसे शांति कुंज पवित्र धाम से उस आयोजन का संचालन हुआ. वहीं से मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पूरा कार्यक्रम का संचालन किया गया. गुरुदेव और वंदनीय माताजी के सूक्ष्म सानिध्य में हमें बहुत ही अच्छी तरह से हम आज का ये कार्यक्रम संपन्न किया. बहनों भाइयों, आज का ये वसंत पर्व उल्लास का पर्व, आनंद का पर्व, हर एक के जीवन में वसंत आए, उल्लास आए, नए नए संकल्पों उभरे और लोग हमारे गुरुदेव का संकल्पों को पूर्ण करें. हमारा गुरुदेव का संकल्प है मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण. तो मनुष्य में देवत्व का उत्थान हो, देवत्व की जागृति हो और हर एक मनुष्य बहन हो चाहे भाई हो देवतुल्य बने, देव जैसे बने. ऐसे हम गायत्री परिवार की ओर से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं. दूसरी ओर देखें तो वसंत पर्व सरस्वती माता का अवतरण दिन भी है. कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा ने जब सृष्टि का सर्जन किया तो सूना सूना सा लग रहा था. बाद में माँ गायत्री का आह्वान करके माँ ने उस सृष्टि में प्राण का सिंचन किया. फिर भी सूना लग रहा था, तब जाके ब्रह्मा जी ने सरस्वती का आह्वान किया और सरस्वती माता को अवतरित करके वाणी का संचार किया. सरस्वती माँ ने सभी सृष्टि को, प्राणी सृष्टि को, पूरे जीव सृष्टि को वाणी का प्रदान किया और बाद में उस उत्सव को मनाने के लिए प्रकृति ने भी अपना स्वरूप, सुंदर स्वरूप धारण किया. नई नई कुपड़ों फूटने लगी और मतलब पुष्प खिलने लगे. उसी तरह से वसंत को मनाते हैं. हमारे भारत में कैसे है कि मेन तो 6 ऋतु है और 6 ऋतु में बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही भाव से वसंत ऋतु जो ऋतुओं का राजा है, इसीलिए ऋतुओं का राजा है वो वसंत ऋतु, इसीलिए वसंत ऋतु सब लोग मनाते हैं. तो आइए इस वसंत पर्व में सभी के जीवन में उल्लास हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी तंदुरुस्त रहे, सभी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और सभी का जीवन में क्रांति हो, सभी को आध्यात्मिक उन्नति हो, सभी को सुख मिले, शांति मिले, चैन मिले. उस भाव से सभी को प्रणाम और गुरुदेव माता जी का सभी को आशीर्वाद. जय गुरुदेव. Sai Datta Peetham is also known as Shiva Vishnu Temple. This temple is actively observing several festivals
as well as traditional path of making offerings to Lord on everyday basis. Here are some excerpts from Saraswati Puja organized on the day of Vasanta Panchami at Sai Datta Peetham. Sairam everybody. My name is Krishna Mohan Badram. This is Sai Datta Peetham Siva Vishnu Temple. This is first year conducting Sri Panchami Mahasaraswati Puja. 2 batches, morning 1 batch, evening 1 batch. Lot of devotees is performing Mahasaraswati Puja in our kids. This is main kids puja. This is kids puja. All kids very interestedly and performing Mahasaraswati Aradhana. This Sai Datta Peetham and Siva Vishnu Temple all pleased blessings to give to all children, good health and good wealth and good education. Sai Ram everybody. Welcome to our Sai Mandir. I'm Vinay Kumar. Today it was very nice to participate in the puja for my kid Sanvi. And we felt very happy to provide this puja in this premises. And thank you, Sai Datta Peetham, for this opportunity. Time to say goodbye from today's Vision of Asia Voice of Community, but time also to recollect with you that it is going to be a very special day tomorrow, and the day that is observed as Valentine's Day. Don't hesitate and don't hold back in expressing your love is the inspiration that has become a part of festivities related to Valentine's Day. So we take this opportunity of expressing our love for all of you on behalf of ITV Gold. Stay well, take care. Thanks. This is Ashok Vyas. Namaste.